Hello everyone, my name is Simran and I'm going to teach you mathematics. Students, in the last class we have done the examples of exercise 6.5 and today we'll be doing the exercise portion of 6.5. So let's start with the first question of this exercise, students. What is it? PQR is a triangle, okay? Right angled at P. Now we are given a triangle P, Q and R. But it is also given to us that it is right angled at P. इसका मतलब ये है कि जो right angle होगा उसका vertex क्या होगा? P होगा. So this is the P, right? अब Q और R, आपको QR लेनी है बट वो आप कुछ भी ले लीजिए. यहाँ पे मैं Q ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं R ले लेती हूँ. अब PQ की लेंथ क्या दी हुई है स्टूडेंट्स? If PQ is 10 सेंटीमीटर्स, ये लेंथ मुझे क्या मिली हुई है? 10 सेंटीमीटर्स एंड PR इज 24 सेंटीमीटर. 24 सेंटीमीटर्स. फाइंड QR. अब हमें ये पता लगाना है कि QR क्या है. तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है. हमें उसके लेंथ का जो लेग्स है उसकी राइट एंगल की उसका मेजर पता है और अब हमें क्या निकालना है? हमें इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो बहुत इजीली बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे. सो स्टूडेंट्स, PQ इज 10 सेंटीमीटर्स एंड PR इज 24 सेंटीमीटर्स. सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये जो मेजर हुआ QR हुआ, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज. QR स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा? इस QP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर and this will be your Pythagoras property, that is hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, that is QR square is equals to PQ square plus PR square. Now students, we don't know about the value of QR, right? So let it be as it is. Now PQ is equals to 10, so the square of 10 plus PR is 24 square. So QR square is equals to 10 square. What is 10 square students? 10 into 10. 10 into 10 is equals to 100. And what is the square of 24? 24 square is 24 multiply 24. Students, it is 576. Okay, let us know. 24 into 24, right? Multiply. 4 into 4 is 16. 6 at the bottom. 1 on the carry. 4 into 2 is 8. 8 plus 1, 9. Into 4 into 2, that is 8. And 2 into 2, that is 4. Now we'll add these. 6. 9 into 9 plus 8 is 17. 7 at the bottom and 1 on the carry. 1 plus 4 is 5. So this is the square of 24 and this is way in which you can write down the square or you can find out the square. Alright students. Now students, this QR square is equals to 100 plus 576 is 676. Now this 676 is the square of QR and we need to find out the length of QR. So basically it means that we have to do the square root of 700 and 576, right? So QR is equals to square root of 676. Okay, let's know how can we do that. 676. Okay, 676 divided by 2, it will turn out to be students 338. Okay, after that divided by 2 because it is even number, it will turn out to be 169. After that students, 169 is solely divided by 13. So 13 divided by 169, it will be 13 again, and 13 is a prime number, so it will be cancelled out by 13 only.
Have a look students, it is 2 into 2 and 13 into 13. I have just told you when you are finding out the square root, जब आपको square root find out करना होता है तो जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स आते हैं तो उनमें 2 की जगह पे किसी एक को लेते हैं. सो 2 into 2 का पेयर आ रहा है तो इसका मतलब हम इन 2 की जगह पे एक ही लेंगे. सो इट इज़ ओनली एंड ओनली 1 2 और यहाँ पे 13 into 13, 13 का एक पेयर आ रहा है तो 2 नहीं लेंगे, एक ही लेंगे. सो into 13. So what do you mean by 2 into 13? That is 26. So students, the square root of 676 is 26 centimeter. And what is this 26 centimeter students? This is your hypotenuse and the length of the side QR. Alright students, just have a look what you have done. We have just applied the Pythagoras property and by solving we have done the prime factorization of this thing by having the square root of 676. Alright students, looking at the next question, the question number 2. ABC is a triangle right angled at C. If AB is 25 centimeter and AC is 7 centimeter, then find out BC. We have the triangle and this is a right angle. It is right angle at C. So it will be A and it will be B. अब हमें AB का वैल्यू क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर. तो अब ये 25 सेंटीमीटर क्या है स्टूडेंट्स? इट इज द हाइपोटेन्यूज. AC क्या है 7 सेंटीमीटर्स. अब हमें निकालना क्या है? हमें साइड BC निकालनी है, मतलब हमें बेस बताना है कि बेस क्या है. स्टूडेंट्स AB क्या है 25 सेंटीमीटर्स एंड व्हाट इज AC? AC is 7 centimeters. Now we have to find BC. So by Pythagoras property, square of the hypotenuse, that is AB square, is equal to the perpendicular square, that is AC square, plus BC square, that is the base square. AB means 25, the square of 25 is equals to AC means 7, 7 square plus BC square. Now students, 25 square means 25 into 25. It is 625. How students? Have a look. 25 into 25, 5 into 5 is 25, 5 at the bottom, 2 on the carry, 5 into 2 10, 10 plus 2 12, into 2 into 5 that is 10, 0 at the bottom, 1 on the carry, 2 into 2 4, 4 plus 1 5. So 5, 2, 1 plus 5 that is 6. So this is the 625, that is the square of 25. Alright students. Now students, what do you mean by 7 square? That is 7 into 7. 7 into 7 is equals to 49. 49 plus BC square. Now students, अब हमें निकालना है BC का वैल्यू. अब हम 49 को राइट हैंड साइड से ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये 49 क्या हो जाएगा -49. सो 625 minus 49 is equals to BC square. 625 minus 49 students, ये इस पे जा रहा है 5 minus 9 नहीं हो सकता, 2 minus 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम 6 से कैरी लेंगे, 6 बन जाएगा 5, 12 क्या बन जाएगा 11 और ये 5 क्या बन जाएगा 15, 15 minus 9 is 6, 11 minus 4 is 7 and 5, so 576 is equals to BC square. Alright students, अब हमें किसी स्क्वायर की वैल्यू पता है, ओके अब हमें पता है कि BC स्क्वायर ये है, तो अगर हमें किसी स्क्वायर की वैल्यू पता होती है तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट करते हैं
और उस तरह से हम किसी साइड का मेजर पता कर लेते हैं। तो अब हम BC स्क्वायर का वैल्यू पता है हमें कि इट इज़ 576. So what do you mean by the value of BC? That will be square root of 576. अब हम पता लगाते हैं कि 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 576 starting from the 2 because it is even number 2, it will be 2 8 8, then again from 2 144, again from 2 72, again from 2 36, again from 2 18, then again 2 9, then 3 3 3 and 1. So students, have a clear look. I have done the prime factorization of 576. I am just making the pairs of these factors. अब हमें पता है कि अगर हमें स्क्वायर रूट लेना होता है तो हम 2 की जगह पे 1 लिखते हैं, तो इसकी 2 की जगह पे हम 1 2 लिखेंगे, इन दोनों की जगह पे 1 2, इन दोनों की जगह पे 1 2 और इस 3 की जगह पे 1 3, और इन सब को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज़ 2 × 2 × 2 × 3, और ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। Students, 2 × 2 is 4, 4 × 2 is 8 and 8 × 3 is equals to 24. So 24 centimeter is the square root of BC. So BC is equals to 24 centimeters. This is equals to 24 centimeters. Alright students, this is all about the second question. Looking at the third question. A 15-meter long ladder reached a window 12-meter high from the ground on placing it against a wall at the distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. हमें बता रखा है कि एक ये सीढ़ी है। अब स्टूडेंट्स, जो लेडर होती है वो इस तरह से लगाई जाती है ना, वॉल अगर सपोज ये है तो उसके ऊपर इस तरह से लगती है सीढ़ी। ओके, तो अगर ये वॉल है और ये लेडर है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये सीढ़ी की लेंथ कितनी है, ये लेडर है 15 सेंटीमीटर, मतलब हमें इसका क्या पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। ओके, और अब बता रखा है कि एक विंडो है जो 12 सेंटीमीटर हाई है, मतलब इसका हाइट क्या है, 12 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से, और इसको वॉल के अगेंस्ट रखा गया है। लेडर का जो फीट है उसका डिस्टेंस बताना है कि इस दीवार से इसके फीट का कितना डिस्टेंस है, मतलब हमें ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि इसका वैल्यू दे रखा है। ओके, एट ए डिस्टेंस ए। अब हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि बेस है। हमें क्लियर दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है फ्रॉम द डायग्राम, सो विल बी यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेन्यूज गाइस क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 15 स्क्वायर, अभी 15 का स्क्वायर किसके बराबर है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के, तो ये तो क्या है 12 मीटर्स, 12 मीटर्स का स्क्वायर प्लस इसका क्या दे रखा है हमें मेजर, ए, ये क्या दे रखा है ए, सो इट विल बी ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 × 15 and 15 × 15 is equals to 225. स्टूडेंट्स 15 का स्क्वायर हमने कैसे लिया, 15 × 15, 15 × 5 is 75, 1 × 5 5, 1 × 1 1, so 5, 7 plus 5 is 12, 1 on the carry, 1 plus 1 2, so 15 square is 225 and 12 square is 144. How? 12 × 2 24, 12 × 1 12, so 2 plus 2 4, so it is 144 and it is 225. Now students, it is a square. अब हमें a का वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल है, तो हम इस 144 को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, तो ये क्या बनेगा 225 माइनस
144 is equals to a square. अब स्टूडेंट्स 225 minus 144, 5 minus 4 is 1, 2 minus 4 not possible, so we'll having a carry, that will be 1, and this is 12. 12 minus 4 is 8. 1 minus 1 0, so this is 81. Now students, 225 minus 144 is 81. 81 is equals to a square. अब हमें किसी का स्क्वायर का वैल्यू पता है कि 81 है, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, a square is equals to 81. So a will be having the square root of 81. Alright students, अब 81 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. 81 divided by 3 because it is an odd number. So this is 27. Again on 3, 9, again on 3, 3, again on 3, 1. अब ये इनका हम पेयर बनाएंगे और इनकी जगह पे हम क्या लेंगे, 3 and 3. So 3 into 3 कितना हुआ स्टूडेंट्स, 9. और हमें पता भी है कि 9 into 9 क्या होता है, 81 होता है. So the value of a will turn out to be, so the value of a is students 9 meters. और ये 9 मीटर क्या है, this is the distance of the foot of the ladder from the wall. Alright students, this is your third question. Looking at the fourth question. Fourth question students, which of the following can be the sides of the right triangle? अब हमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बताना है कि हमें अगर यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं तो इन तीनों पार्ट्स में से कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो सकते हैं. Alright students, these are the 3 parts given to us. Next, in the case of the right angle triangles, identify the right angles. और ये पूछा गया है कि अगर हमें पता लगता है कि ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है या इनमें से कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके राइट एंगल को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, so we'll be doing this question one by one. Firstly, we'll be going to discuss the first part. Alright students, just have a look. First part is 2.5 centimeters, 6.5 centimeters and 6 centimeters. Alright students, so let's solve this now. First part, 2.5 centimeter, 6.5 centimeters and 6 centimeters. Similarly like this, 2.5, 6.5 and 6. Alright students, so in this part we'll consider the hypotenuse to be the longest side. जो सबसे बड़ी साइड होगी स्टूडेंट्स, हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, हम उसको हाइपोटेन्यूज कंसिडर करते हैं. तो विल कंसिडर द हाइपोटेन्यूज टू बी 6.5 centimeters. Alright students, so now we'll be having the property of Pythagoras. So by Pythagoras property, students. So by Pythagoras property students, we know that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. This is the well-known Pythagoras property students, and if you want any sides of the triangle to be the right angle triangle students, you need to follow this property. अगर कोई भी right angle triangle इस property को hold नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो एक right angle triangle है ही नहीं. Alright students, तो अगर किसी triangle को आप देख रहे हो कि वो एक right angle triangle है या फिर नहीं, तो उसके लिए सबसे important है कि वो Pythagoras property hold करे. Alright students, अब इस क्वेश्चन में हमें यही चेक करना है कि कौन सा ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो हमें ये बता रही हैं कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो अगर ये सब पार्ट्स वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे, तो अगर हमें इनकी साइड से पता लगेगा कि ये राइट पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. और अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी तो हम क्लियरली बोलेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, so starting with the hypotenuse students, that is 6.5 to be the largest side. 6.5 square is equals to perpendicular, that is 2.5. Let it be 2.5. And let the another side be 6 centimeters, right? So it is 6 centimeters.
Now students, we have just known that if you want to have the square of 6, then it means that it is 6 multiplied by 6, right? It is 36, very clear. Now students, if you want to have this square root, like the square root of 2.5, then it is equals to 2.5 into 2.5. Alright students. So what it means? It means 2.5 into 2.5. And if you want to have the square of 6.5, then it means 6.5 multiplied by 6.5, right? And we also know that we can write that 6.5 as 65 upon 10. Alright students, we can have the decimal removed and जितने digits उसके पीछे होंगे, decimal के पीछे होंगे, उतने ही digits, उतने ही zeros हम लगाएंगे over 1 denominator में. तो अब decimal के बाद एक ही digit है, तो हम decimal के नीचे denominator में 1 के पीछे कितने zero लगाएंगे? 1. So 65 upon 10. Similarly, 65 upon 10 is equals to 2.5 into 2.5, again 25 upon 10 into 25 upon 10. Plus 36. Alright students, अब हमें क्वेश्चन का फॉर्मेशन पता लग गया है कि हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है. Alright students, so we'll be starting with the left hand side. Take the left hand side students. It is 65 into 65 upon 10 upon 10. हमने हमारी fractions and decimal chapter में पढ़ा था कि if you want to multiply the fractions, then what you need to do? You have to do the product of the numerators upon the product of the denominators, right students? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? Product of numerators like 65 multiply by 65, right? And 10 into 10, that is the product of the denominators, right? Now students, what is the multiplication? That is 65 into 65. Have a look students. 65 into 65 is equals to 5 into 5, 25, 2 on the carry. 5 into 6, that is 30, 30 plus 2, 32. 6 into 5, 30, 0 at the bottom, 3 on the top, that is in the form of carry. 6 into 6, 36, 36 plus 3 is equals to 39. Students, it is 5, 2, 12, 1 carry, 4. So, it is students 4225. This is the solution of 65 into 65. Now students, 10 into 10 is 100. Alright. So, अब हमें इधर से पता लगा है कि हमें अगर कोई भी चैप्टर करना है तो उसको करके भूलना नहीं है. वो पुराना चैप्टर आपके आगे वाले सभी चैप्टर्स में यूज़ होता है. जैसे अब हम यहाँ देख रहे हैं, हमने अभी किसका यूज़ किया? फ्रैक्शंस के कंसेप्ट का यूज़ किया. यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया? डेसिमल्स का यूज़ किया, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस. अब हम यहाँ कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे? अगेन हम डेसिमल्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर हमें पता है कि 4225 अपॉन 100, हमने ये चीज़ कर रखी है हमारे चैप्टर 2 में कि जितने डिजिट होंगे यहाँ पे वो 1 will have the decimal before the digits. All right students, starting from the back. So it is 2 digits, 2 zeros over 1. So we'll be having the decimals before 2 digits. All right students. So this is your left hand side, that is this value. 65 into 65 upon 10 into 10 is equals to 42.25. And this is your, what is this students? This is your left hand side. Alright. Now students, we know the value of left hand side. Left hand side is 42.25. Right. Now we'll be having the value for the right hand side. The right hand side is 25 into 25 upon 10 into 10 plus 36. Now students, have a look. These are the fractions, and if we want to have the multiplication of the fractions, then the product of fractions is equals to product of the numerators upon the product of the denominators, right? So it is 25 into 25 upon 10 into 10 plus 36.
So students, 25 into 25 is equals to 625 upon 100 plus 36. 625 divided by 100. Similar concept students, यहाँ पे 2 zeros हैं over 1, तो हम decimal कहाँ लगाएंगे? Before 2 digits. Okay, so starting from the back, 1 and 2. So it is 6.25 plus 36. Have the addition of 36 and 6.25 students. It will be 5 plus 0, 5, 0 plus 2, 2, point, then 6 plus 6, 12, 2 on the bottom, 1 on the carry, 3 plus 1, 4. So 42.25 is your right hand side. Have a look students, this is your right hand side and this is your left hand side. And from this thing it is clear that your left hand side is equal to your right hand side, and it also says that this property holds good for these sides. What sides? 2.5, 6.5 and 6. So it means that this triangle is a right angled triangle. Alright students. So now we know that this triangle is a right angled triangle. As this property holds good, so this triangle is a right angled triangle अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने एक और पॉइंट लिखा था कि हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो राइट एंगल है वो कौन सा है. हमें पता है कि जो राइट एंगल होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज की ऑपोजिट बनता है. सो द राइट एंगल कहाँ होगा? ऑपोजिट टू दैट ऑफ द साइड 6.5 centimeters. So write it like that. As this property hold good, so this triangle is a right angle triangle, and the right angle is opposite to that of the side that is equals to 6.5 centimeters. Right students, you have to write this thing. Alright, now students, this is your first part. You have to solve this question for the part 2 now. Alright students, so we will be having the solution for the second part. Okay, so what is the second part students? Just have a look. That is 2 centimeters, 2 centimeters and 5 centimeters. Alright students, 2, 2 and 5. Now students, by this 2, 2 and 5, what we mean that we are taking the hypotenuse as 5 centimeters, because जो सबसे बड़ी साइड होगी हम उसके अंदर वही साइड जो होगी उसको hypotenuse consider करेंगे. So students, the second part, 2 centimeters, 2 centimeters and 5 centimeters. तो हम यहाँ पे hypotenuse किसको consider कर रहे हैं? 5 centimeters को. So by Pythagoras property, hypotenuse square is equals to p square plus b square. Hypotenuse is equals to 5, so the square of 5 is equals to perpendicular to base 2. So students, 5 into 5, that is 5 square is equals to 5 into 5, 25. So this is 25, and 2 square is equals to 2 into 2, that is 4. This is 4 and this is also 4. Have a look students, this is your left hand side, and what is your right hand side? This is 25, your left hand side, and your right hand side is 4 plus 4, that is equals to 8. Have a look students, left hand side is not at all equal to the right hand side. So this means that this property doesn't hold good, and this triangle is not at all a right angle triangle. So LHS is not equal to RHS.
So what you need to write? This property doesn't hold. So this is not a right angled triangle. This is just what you need to write because we know कि हमें यहाँ पे by Pythagoras property से हमने इस पे प्रॉपर्टी लगा के देखी और हमें पता लगा कि ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही है इन साइड्स पे. तो इसका मतलब यही है कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो इसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट. उसके लिए सेम हम प्रोसेस करेंगे कि प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं लग रही है. सो लुकिंग एट द थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट? थर्ड पार्ट इज 1.5 centimeters, 2 centimeters and 2.5 centimeters. Alright students, 1.5, 2 and 2.5 centimeters. 1.5, 2.5 and 2 centimeters. Have a look students, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 2.5 centimeters. तो हम उसी साइड को हमारा hypotenuse consider करेंगे. So hypotenuse will be equal to 2.5 centimeters, right? So we'll apply the Pythagoras property. By Pythagoras property, h square is equals to p square plus b square. अब hypotenuse हम क्या ले रहे हैं students? 2.5 centimeters. So 2.5 square is equals to p square, 1.5 square and b square is 2 square. This is 2.5 into 2.5 which is equals to 1.5 into 1.5. And what is 2 square? 2 square is equals to 4. Alright students, this is equal to 4. Have a look students, now we'll be solving this part, okay? That is 2.5 into 2.5. Remove the decimal, it will be like that. And if you want to have the product of the fractions, you will have to do the product for the numerators upon the product of the denominators, alright. So it will be 25 into 25 upon 10 into 10. 25 into 25 is 625 and 10 upon 10 is 100. So students, 6.25 is the required left hand side. Alright students, अब हम इसको यहाँ लिखेंगे 6.25. This is your left hand side, right? Now we'll be solving that for your right hand side. So have a look students. RHS is equals to 1.5 into 1.5 plus 4. 15 upon 10 into 15 upon 10 plus 4. स्टूडेंट्स यहाँ पे 1.5 था तो मैंने डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर पे एक ज़ीरो लगा दिया क्योंकि डेसिमल के पीछे सिर्फ एक ही डिजिट था. राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए 15 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 10 प्लस 4. 15 इंटू 15 इज 225 अपॉन 100 प्लस 4. सो स्टूडेंट्स, इट कैन बी रिटन एज 2.25 क्योंकि 1 के नीचे कितने जीरो है? 1 के पीछे 2 जीरोस, तो हम डेसिमल लाइन लगाएंगे न्यूमरेटर पे बिफोर 2 डिजिट्स. सो 1 2 2 डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगा दिया प्लस 4. सो स्टूडेंट्स, इनका एडिशन क्या होगा? 2.25 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 6.25. दिस इज आवर राइट हैंड साइड. सो स्टूडेंट्स, द राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 6.25. Have a look, the left hand side and the right hand side is the same, so it means that LHS is equals to RHS, and it also means that this property holds good for this question. So this triangle with these sides is a right angle triangle. And what is the right angle here? Identify करना है हमें. तो right angle किसके opposite होगा? Right angle is at opposite of this side, that is side 2.5 centimeters, and you have to write this thing students on your notebook. Alright, now students will be having a look at your next question. What is that students?
Next question is question number 5. A tree is broken at the height of 5 meter. एक पेड़ है जो टूट गया है कितनी हाइट से? 5 मीटर की हाइट से. From the ground and its top touches the ground at the distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. अब हमें इसमें निकालना क्या है कि जो पेड़ था उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, पेड़ इतना लंबा था, राइट. अब उसका कुछ पार्ट टूट गया तो ये पार्ट इस तरह से गिरेगा ना. अगर कोई पेड़ था लंबा सा, उसका आधा पार्ट टूट गया तो जो बाकी पोर्शन था वो ऐसे गिरता है ना, तो वो इस टाइप से गिरेगा. तो मतलब अगर हमें निकालनी है ओरिजिनल हाइट ट्री की, तो ओरिजिनल हाइट क्या होगी? एक तो ये जो हमें 5 मीटर दे रखा है ये, और एक जो ये वाला जो गिर रहा है वो, इन दोनों का एडिशन करके ओरिजिनल लेंथ आएगी, राइट. तो हम इस क्वेश्चन में बता क्या रखा है स्टूडेंट्स कि एक ट्री है जिसकी हाइट हमें नहीं पता क्या थी, मगर वो हाइट 5 मीटर की हाइट से वो टूट गया. तो मतलब कहाँ से टूट रहा है? ये 5 मीटर की हाइट से टूट रहा है, राइट. तो ये वाला हाइट क्या है? ये 5 मीटर है. तो 5 मीटर की हाइट से टूटा और ग्राउंड और उसके टॉप, उसका जो टॉप था वो टच कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है. और ग्राउंड का और उसके टॉप का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर्स. जहाँ पे इसका टॉप गिरा और ग्राउंड का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर्स, राइट. बेस ऑफ द ट्री. तो अब हमें ओरिजिनल हाइट निकालना है. तो ओरिजिनल हाइट क्या होगा स्टूडेंट्स? एक तो ये 5 मीटर्स और एक ये जो भी इसका हाइपोटेन्यूज आएगा उनका एडिशन होगा, राइट स्टूडेंट्स. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम अस. आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ओरिजिनल हाइट क्या है. एक तो जिस पॉइंट से वो ट्री गिरा है वो, प्लस वो ट्री ऊपर वाला पोर्शन उसका जितना था जो नीचे गिरा, मतलब उसका हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, और आपके हाइपोटेन्यूज का जो एडिशन होगा वही ट्री का ओरिजिनल लेंथ होगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमेशा जो ट्री होता है वो राइट एंगल पे ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी. अब स्टूडेंट्स हमें नहीं पता कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, सो वी डोंट नो अबाउट द हाइपोटेन्यूज. तो हम हाइपोटेन्यूज का एज इट इज लेंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूज नहीं पता तो इसको एच ही कंसिडर करेंगे. परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? 5 सेंटीमीटर्स, 5 मीटर्स. तो 5 स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस बी? 12 मीटर. So this is 12 square. This is h square. 5 into 5 is 25. And 12 square, that is 12 into 12 is equals to 144. Students, h square is equals to 25 plus 144 is 169. This is the h square. अब हमें h स्क्वायर की वैल्यू पता है 169 है, तो हम h की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? बाय हैविंग द स्क्वायर रूट. तो हम 169 का स्क्वायर रूट करेंगे. हमने अब सीख लिया है कि स्क्वायर रूट कैसे करते हैं. 169 सिर्फ 13 की टेबल पे डिवाइड होता है. सो 169 को हम डिवाइड करें 13 की टेबल पे, सो इट इज़ 1 3 कैरी एंड 9. 13 into 3 is 39. So students, 13 into 13 is 169. So ये 13 के टेबल पे कटेगा. फिर अगेन 13 एक प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ खुद के टेबल पे जाएगा. So it is like that, this. So the factors of 169 is 13 into 13. बट हमें चाहिए क्या? उसका स्क्वायर रूट. तो मतलब 2 की जगह पे सिर्फ 1 लेंगे. So हाइपोटेन्यूज क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा? 13 मीटर्स. ओके. The hypotenuse will turn out to be 13 meters. अब हमें hypotenuse पता लग गया है स्टूडेंट्स, और हमें निकालना क्या है? We have to find the original height of the tree. अब हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर से वो टूटना शुरू हुआ और 13 मीटर्स वो टूट गया. तो एक्चुअली वो कितना था? 13 जो टूट गया प्लस अभी जो 5 है वो. So 13 plus 5, that is 18 meters was the original height of the tree. Write it like that students. Original
height is equals to 13 plus 5, that is 18 meters. This is the original height of the tree. Alright, looking at the next question, students, the question number 6. Angles Q and R of a triangle PQR. This is a triangle in which Q and R are given to us like 25 degree and 65 degree. This is 25 degree and this is 65 degree. So which of the following is true? We have to find out which of these following is true. PQ square plus QR square is equals to RP square. क्या ये ठीक है? PQ square plus RP square is equals to QR square. क्या ये ठीक है? या RP square plus QR square is equals to PQ square. क्या ये ठीक है? सबसे पहले इनको निकालने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा ना कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है. तो हमें अगर दो एंगल्स पता है तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं. किस प्रॉपर्टी की हेल्प से? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो स्टूडेंट्स, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स के जो सम का मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है. सो स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ एंगल Q प्लस मेजर ऑफ एंगल R प्लस मेजर ऑफ एंगल P, ये 180 डिग्री के इक्वल है. अब Q एंगल का मेजर क्या है? 25 डिग्री. R एंगल का मेजर क्या है? 65 डिग्री. और M का मेजर हमें निकालना है. सो इट इज 180 डिग्री, राइट. 25 डिग्री और 65 डिग्री क्या होता है? 25 प्लस 65 इज 90 डिग्री. ओके, सो 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हमें अगर मेजर ऑफ एंगल P निकालना है तो ये 90 डिग्री को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे. अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये -90 हो जाएगा. So it is 180 degree minus 90. So measure of angle P is, students, 180 degree minus 90 degree is equals to 90 degree. तो अब हमें पता लग गया कि जो एंगल P है वो 90 डिग्री है. सो ये एंगल P क्या आ रहा है? 90 डिग्री. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर एंगल P 90 आ रहा है तो मतलब ये हुआ ना कि ये PQR जो एंगल है, ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. Alright students, so we'll write it like that. Now triangle PQR is right angled at P. Right, अब हमें पता लग गया कि ये तो P पॉइंट पे right angled है. Alright students, so by Pythagoras property we can write अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे स्टूडेंट्स. अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट. होता तो यही है ना पाइथागोरस प्रॉपर्टी. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब हमें क्या पता है इसमें हाइपोटेनियस क्या है? स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो साइड बनती है वही होती है हमारी हाइपोटेनियस. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो साइड होगी, मतलब ये साइड जो होगी ये हो गया इसका हाइपोटेनियस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हाइपोटेनियस क्या हुआ स्टूडेंट्स? QR स्क्वायर. ये QR स्क्वायर किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या होगा? ये मान लीजिए, ठीक है, PQ स्क्वायर. और बेस क्या हुआ? जहाँ पे 90 डिग्री लाई कर रहा है, ठीक है, दैट इज PR स्क्वायर. अब नाउ दिस इज QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. अब इन ऑप्शंस में देखिए QR स्क्वायर यहाँ पे किस पे आ रहा है? क्लियरली इस पे. QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, सो राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Option 2 is true. हमें क्वेश्चन करने होते हैं. All right students, looking at the next question students, that is the question number 7. Find the perimeter of a rectangle
whose length is 40 centimeters and a diagonal is 41 centimeter. Alright students, अब हमें क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है. सबसे पहले तो रेक्टेंगल का पैरामीटर किसके इक्वल होता है? पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is equals to 2 into L plus B. This is the perimeter of a rectangle. मतलब 2 multiply length plus breadth. Alright students. अब हमें लेंथ तो पता है कि रेक्टेंगल की 40 सेंटीमीटर्स है, बट हमें ब्रेड्थ नहीं पता. तो पैरामीटर निकालने के लिए पहले तो हमें ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें पैरामीटर पता लगेगा. अब हमें इन्होंने ब्रेड्थ नहीं बता रखी, लेकिन उसकी जगह पे क्या बता रखा है? हमें डायगोनल बता रखा है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब हम सबसे पहले ब्रेड्थ निकालेंगे कैसे? अब हमें बोला हुआ है कि एक इन्होंने हमें रेक्टेंगल दिया है, उस रेक्टेंगल में इन्होंने बोला कि उसकी लेंथ क्या है, मतलब ये चीज़ क्या है? 40 सेंटीमीटर्स. और उसका डायगोनल क्या है? डायगोनल है 41 सेंटीमीटर्स. सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है वो उसके जो एंगल्स होते हैं सभी वो 90 डिग्री होते हैं. हमेशा इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. सभी एंगल्स एक रेक्टेंगल के 90 डिग्री होंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको नाम दे देते हैं ABCD. सो लेट ABCD be the rectangle. ओके, सो अब हम कौन सी ट्राइंगल कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स? ट्राइंगल BCD. सो इन ट्राइंगल BCD इसमें राइट एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल C. In this angle BCD is equals to 90 degree. So if it is 90 degree, then it means that it is a right angle triangle. So by Pythagoras property, students, by Pythagoras property, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. इसमें hypotenuse क्या है students? 41. देखिए राइट एंगल के सामने वाली साइड, मतलब ये 41 सेंटीमीटर्स इसका क्या हुआ? हाइपोटेनियस हुआ. परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, यही तो निकालना है ना. ये इसकी ब्रेड्थ होगी ना, यही चीज़ तो हमें पता लगानी है. तो ये हमें नहीं पता परपेंडिकुलर क्या है, वी डोंट नो अबाउट दैट. एंड व्हाट इज द बेस? बेस इज 40 सेंटीमीटर्स, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, 41 मल्टीप्लाई बाय 41 into 4 into 1 4 4 into 4 16. So this is 1861. 1681 is equals to perpendicular square plus 40 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 1600. देखिए 40 into 40 0 0 into 0 16 0 0 6 1 1 6 00. सो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन. अब हम इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर, मतलब कि हमारा ब्रेड्थ. ओके, अब स्टूडेंट्स हम इस 1600 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे. तो ये क्या बनेगा? 1681 माइनस 1600 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट, 1681 माइनस 1600 इज 81. 81 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब अगर हमें किसी स्क्वायर की वैल्यू पता है तो उसका स्क्वायर रूट करके हम उस चीज़ की वैल्यू भी पता कर सकते हैं. सो P इज इक्वल्स टू 81 स्क्वायर, राइट. सो 81 का जो स्क्वायर रूट आएगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा, वही हमारा मेजर होगा ब्रेड्थ का. सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? नाउ विल हैव द स्क्वायर रूट ऑफ 81. 81 3 के टेबल पे 27 पे, देन अगैन 3 9, देन अगैन 3 3, देन अगैन 3 1. अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे 3 into 3 एंड 3 into 3. स्क्वायर रूट के अंदर हम सिर्फ एक ही वैल्यू कंसिडर करते हैं आउट ऑफ 2. सो दिस इज 3 into 3. सो स्टूडेंट्स, 3 into 3 दैट इज 9. एंड हमें पता है कि 9 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है? 81 होता है. तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 9 सेंटीमीटर्स. एंड ये P है क्या? दिस परपेंडिकुलर दैट इज BC.
वेयर BC इज योर ब्रेड्थ, राइट। तो BC अब हमें पता लग गया 9 सेंटीमीटर्स है। तो अब इसकी हेल्प से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना, यस। तो अब हम इसकी हेल्प से पेरीमीटर निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर किसके बराबर है, 2L + B के, राइट। सो स्टूडेंट्स, लेंथ क्या हमें दे रखी है 40 और ब्रेड्थ हमने क्या निकाल ली 9। सो 40 + 9 × 2, 40 + 9 is 49. So 49 multiplied by 2 is equals to 98. So students, इस rectangle के perimeter का value क्या आया 98 centimeters. Alright students, looking at the next question. The diagonals of the rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो रोम्बस होते हैं उनके डायगोनल्स आपस में कहाँ कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रोम्बस की हर साइड आपस में इक्वल होती है और रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनके मिड पॉइंट पे। मतलब उनके डायगोनल्स जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे ना, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वही पॉइंट उस डायगोनल को बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये एक रोम्बस है और ये इसके डायगोनल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल्स ये डायगोनल्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट O ले लीजिए। तो ये जो पॉइंट O है ये इन डायगोनल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में कट भी करेगा। मतलब AC किसके बराबर हो जाएगा, AO + OC, और AO और OC बराबर होंगे। ऑलराइट, और रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल AC 16 है और BD क्या है 30 है, तो ये कंप्लीट 16 है और ये कंप्लीट 30 है, तो मतलब AO कितना होगा, इसका आधा, 16 का हाफ। तो AO = OC = 16/2, दैट इज 8 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये भी 8 हुआ और ये भी 8 हुआ। और स्टूडेंट्स, BD अगर कंप्लीट 30 है तो BO और OD भी सेम होंगे, BO और OD भी सेम होंगे जो कि 30 का हाफ होंगे, तो मतलब 15 सेंटीमीटर्स। तो ये भी 15 और ये भी 15। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अब हमें पता है कि ये सब आपस में 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे हैं। तो अब हम इन पे क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। फर्स्टली स्टूडेंट्स, इन द ट्राइंगल AOB, इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें इसके अंदर कोई एक साइड निकालनी है। स्टूडेंट्स, रोम्बस की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो अगर हम एक साइड पता लगा लेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि बाकी की 3 साइड भी सेम है। ओके, बाकी की 3 साइड्स अगर सेम हुई तो पेरीमीटर क्या होगा 4 × साइड, क्योंकि 4 साइड्स है ना रोम्बस की, तो 4 × साइड इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, 4 × साइड। ओके, अब हमें एक ही साइड निकालनी है। अब अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो AB क्या है, AO क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, BO क्या है, इसका बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है AB²। सो स्टूडेंट्स, AB² = AO² + OB²। अब AO किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 8 के, 16 का हाफ, तो 8 सेंटीमीटर्स, और OB क्या है 15, AB²। So AB² = 8 × 8 = 64, and 15², that is 15 × 15 = 225. So students, 225 + 64 is 289. 289 = AB²। अब हमें किसी चीज़ के स्क्वायर की वैल्यू पता है तो उसका स्क्वायर रूट करने पे क्या जाता है, वो चीज़ खुद आ जाती है। 289 स्टूडेंट्स सिर्फ 17 की टेबल पे डिवाइड होता है, बिकॉज 17 × 17 क्या होता है 289। सो 289 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 2 17 की जगह पे एक ही 17 लेंगे, तो AB की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 17 सेंटीमीटर्स। तो अब हमें इस रोम्बस की एक साइड पता लग गई जो कि क्या है 17 सेंटीमीटर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें एक साइड पता लग गई है तो हम दूसरी साइड क्या ले लेंगे
17, तीसरी क्या लेंगे 17, चौथी क्या लेंगे 17, बिकॉज ऑल द साइड्स, बिकॉज ऑफ rhombus all sides are equal and perimeter is equal to 4 into side, और साइड क्या है स्टूडेंट 17, सो इसके पेरीमीटर का वैल्यू क्या आएगा 17 into 4 is equals to 68. 68 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रोम्बस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये क्या थी, ये हमारी 6.5 एक्सरसाइज थी. आप सब इस एक्सरसाइज को अच्छे से अपने घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए. आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 को ख़त्म कर चुके हैं. अगली क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7. Till then students, do practice hard. We'll be meeting in your next class. Have a nice day, all of you. Bye bye.